السلام علیکم دوستو خانہ کعبہ یعنی کہ بیت اللہ کا گھر جو کہ مکہ مکرمہ میں سعودی عربیہ میں واقع ہے۔ اس جہان کا ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر نماز پڑھتا ہے۔ خانہ کعبہ سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگوں کو خانہ کعبہ کے بارے میں دلچسپ معلومات سے آگاہ کریں گے۔ دوستو خانہ کعبہ کی تعمیر لگ بھگ 11 دفعہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا تھا۔ خانہ کعبہ کی دوسری دفعہ تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ خانہ کعبہ کو تیسری دفعہ حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کی چوتھی دفعہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ پانچویں دفعہ امالکہ نے بنایا۔ چھٹی دفعہ جرہم نے تعمیر کیا۔ ساتویں دفعہ کسا نے تعمیر کی۔ آٹھویں دفعہ قریش نے بنایا۔ دوستو آٹھویں دفعہ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت موجود تھے۔ ان کی عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ 9ویں دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا۔ 10ویں دفعہ حجاج نے تعمیر کی۔ 11ویں دفعہ سلطان مراد رابعہ بن سلطان احمد نے 1004 ہجری میں بنایا۔ دوستو جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو برگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، جس میں کوہ لبان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہرا اور طور زیتہ شامل ہیں۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام وہاں نماز پڑھتے رہتے اور اس کا طواف بھی کرتے رہتے۔ دوستو طوفان نوحی تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب طوفان نوحی آیا اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، جیسا کہ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ دوستو یہ جو مٹی کا ٹیلہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ دراصل خانہ کعبہ کا وہ منظر ہے جو طوفان نوح علیہ السلام کے بعد ہوا تھا۔ جو عمارت حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی اس کو اللہ پاک نے اوپر آسمان پر اٹھا لیا تھا اور طوفان نوح کے بعد اس طرح کی باقیات رہ گئی تھی۔ یہ جو دوسری جانب آپ کو کعبہ کی شکل نظر آ رہی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا تھا۔ دوستو طوفان نوح کے بعد کعبہ کے اس طرح کے وجود کے باوجود لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل و ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کے یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی، ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بادل کے سائے کی مقدار سے ایک خط کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ۔ لہٰذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا جو کہ ایک خزانے سے مشابہت رکھتا تھا تاکہ کعبہ کے لیے جو نظر و نیاز تحفے میں آئیں اس میں رکھے جائیں گے۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا دروازہ اور دوسرا نکلنے کا دروازہ، اور کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ کعبہ کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلاً اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازہ 2 کی بجائے 1 اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبہ میں ہی تعمیر کیا گیا۔ دوستو آج سے تقریباً 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آتے تو قیام نہ کرتے، مگر تیسری بار جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کا حکم تھا کہ تعمیر کعبہ کریں۔ آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھے پایا۔ آپ علیہ السلام تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، باپ بیٹے بغل گیر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے تو اطاعت کیجیے۔ فرمایا کیا تم میری مدد کرو گے؟ کہا کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ पर एक घर बनाओ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर ज़रा बुलंद हो गई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठा कर लाए ताकि आप इस पर खड़े होकर तामीर करें। यही मकाम इब्राहीम है। दोनों बाप बेटे दुआ करते जाते थे कि ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने वाला जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की ना चूने से, बल्कि बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। ना उसकी छत बनाई। बाद अज़ां मुख्तलिफ अयाम में बैतुल्लाह की तामीर होती रही, हत्ता कि कुरैश ने उसकी तामीर की। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के शुरू में हमने आप लोगों को बताया है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि खाना काबा की तामीर की जाए, तो अल्लाह पाक ने एक बादल के ज़रिए खाना काबा की निशानी ज़ाहिर की। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस जगह की खुदाई की तो नीचे वो बुनियाद मिली जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। तो उसी बुनियाद पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। दोस्तों, जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे, उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 20 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजर को बैतुल्लाह के पहलू में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बनाया था और इस पर पीलू की छत की थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था जिसे अक्सर सैलाब इधर उधर से काटता रहता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर खाना काबा से फारिग हो गए तो उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से एक ऐसे पत्थर का मुतालबा किया जिसे बतौर अलामत के रख सकें, ताकि वो तवाफ के आगाज के लिए बतौर निशानी इस्तेमाल हो सके। दोस्तों, ये वो पत्थर था जिसको आज हजर अस्वद के नाम से जाना जाता है। इस पत्थर को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो 20 नामी पहाड़ से लाए थे। आपने इस मकाम पर रख दिया जहां अब वो कायम है। ये बहुत ज़्यादा रोशन था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तमाम मकामात दिखाए, फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए पुकारें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, मेरी आवाज़ लोगों तक कैसे पहुँच सकती है? अल्लाह ताला ने फरमाया, आप पुकारिए, हम आपकी पुकार को लोगों तक पहुँचा देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अबू बकीस नामी पहाड़ पर चढ़कर पुकारा, ए लोगो, अल्लाह ताला ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया गया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार के घर की ज़ियारत को आओ और हज करो। दोस्तों, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की तो वो बगैर मिट्टी और चूने की थी। आपने खाना काबा को छतदार नहीं बनाया था, ना उसमें कोई लकड़ी का दरवाज़ा था। दरवाजे के बजाय आपने मशरक़ की दीवार में एक कुशादगी छोड़ी थी ताकि खाना काबा के दाखिले की राह मालूम हो सके। वजह यह थी कि वो लोग बड़े दयानतदार थे, ख़यानत और चोरी से आशना न थे। ना ही उनके पास सोना चांदी था और ना ही कोई ज़रो ज़ेवर। रवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर 5 पहाड़ों के पत्थरों से की थी, तोरे सीना, तोरे ज़ीता, लबनान, जोदी और हिरा। दोस्तों, सबसे पहले जिसने खाना काबा का दरवाज़ा बनाया जो बंद हो सकता था, असद हमीरी था। वो मलूक यमन से था। सबसे पहले उसने ही खाना काबा को मुकम्मल गुलाफ बनाया और इसके पास ज़बिया किया। तोरे ज़ीता और तोरे सीना बैतुल मक़दस में 2 पहाड़ हैं और लबनान शाम में है। उसे जबल औलिया भी बोलते हैं। मक्का के शुमाल मशरक़ की जानिब ये पहाड़ वाक़ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं इबादत किया करते थे और सबसे पहली वही इसी पहाड़ पर गार हिरा में नाजिल हुई। दोस्तों, कुरैशी तामीर जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर हयात में हुई, मशहूर है कि कुरैश ने बाद से 5 साल पहले यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 35 साल बाद काबा की तामीर की थी। उन्होंने हजर अस्वद की जानिब से 6 हाथ और 1 बालश्त कम कर दिया था, क्योंकि हलाल माल से जो चंदा उन्होंने तामीर के लिए जमा किया था वो काफ़ी न था। कुरैश ने हजर के पीछे से एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके पीछे से तवाफ़ करें, और इसके दरवाजे को ज़मीन से बुलंद कर दिया था और पत्थरों से इसे मजबूत कर दिया था ताकि सैलाब इसके अंदर ना जा सके और जिसे चाहे ना जाने दें। उन्होंने दरवाज़ा एक ही रखा था, गारे काबा को भी बाकी रखा था, यानी जो बतौर ख़जाना काबा के इस्तेमाल होता था। खाना काबा के अंदर उन्होंने 2 सफ़ों पर 6 सतून रखे थे। हर सफ़ में 3 सतून थे, एक छत और एक परनाला था जो हजरा इस्माईल पर गिरता था। इससे पेशतर काबा की छत न थी, बुलंदी 18 हाथ थी। हजर की जानिब कोई सतून न था, बल्कि दीवार मदर थी जिस तरह के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। लोग उसी तरह काबा के तबाह में अपने घर गोल बनाया करते थे। दोस्तों, कुरैश ने काबा की तामीर इसलिए की थी कि एक औरत ने काबा को धुनी दी तो एक शरारा गुलाफ काबा पर बैठ गया और आग लग गई। हर सिमत से दीवारें फटकर कमज़ोर हो गईं। कुरैश की तामीर से पेशतर काबा की तामीर में मिट्टी या चूना लगाया गया था। बाहर की जानिब दीवारों के ऊपर से पर्दे डाले जाते थे और अंदरूनी जानिब में बालाई हिस्सा से पर्दे बांधे जाते थे।
कुरैश ने काबा की तामीर गारे से की। जिसने ये इमारत गारे से बनाई थी उसका नाम बाकूम रोमी था। ये एक मेमार था जो साहिल अरब पर तिजारत करता था। एक दफ़ा लकड़ियाँ भर कर लाया तो कश्ती जद्दा के करीब टूट गई। कुरैश को पता चला तो उन्होंने ये लकड़ी काबा की छत के लिए खरीदी और कश्ती वालों को इजाज़त दे दी कि वो अपना माल मक्का में ले जाकर बेच ले, उससे कोई टैक्स या हदिया वसूल नहीं किया जाएगा। और इस तरह उन्होंने बाकूम रोमी से खाना काबा की छत बनवा ली। दोस्तों, खाना काबा की ज़ुबैरी तामीर जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हुई, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 3 दिन तक इस्तिखारा करने के बाद काबा को बिल्कुल ज़मीन के बराबर कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा वो 6 हाथ और 1 बालश्त हुजरा इस्माइल में दाखिल है। लिहाजा आपने उन्हीं बुनियादियों पर तमीर की। आपने उसकी बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि अर्ज़ के मुनासिब हो जाए। एक दरवाज़ा दाखिले के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। ये दोनों दरवाजे ज़मीन की सतह के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 हाथ थी और हर एक के 2 किवाड़ थे। आपने काबा के 4 सतून बनाए। इस ज़माना में ये चारों सतून चूमे जाते थे, हत्ता कि आप शहीद कर दिए गए और खाना काबा को गिरा दिया गया। आपने रुकन शामी की तरफ एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया था। सोने से उसे मज़ीन किया था और छत पर परनाला रखा था जो हजर में गिरता था। कहते हैं कि इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खाना काबा की तामीर चूने से कराई थी जो यमन से मंगवाया गया था। बाज़ ने लिखा है कि आपने तामीर पिघले हुए रंग से कराई थी जिसमें दर्स मिली हुई थी। दर्स एक किस्म की जर्द घास होती है जिससे कपड़े रंगे जाते हैं और जो यमन में पैदा होती है। जब आप तामीर से फारिग हो गए तो आपने उसके अंदर मशक वगैरह भरवाया और दीवारों को बाहर की जानिब मशक से लपवा दिया और दीबा का पर्दा डलवाया। बाज़ मुरख्खीन ने लिखा है कि कतान मसरी का गुलाफ डाला था। ये दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आज़ाद किए गए, बहुत से ऊँट ज़बह किए गए और बहुत सी बकरियाँ ज़बह की गई। हज़रत इब्न ज़ुबैर नंगे पाँव निकले और आपके साथ बहुत से कुरैशी नंगे पाँव निकले, हत्ता कि मकाम ताइम की मस्जिद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में पहुँचे और उम्रा का एहराम बांधा कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिमी तामीर पर तामीर करने की तौफीक बख्शी। इब्न ज़ुबैर ने इसलिए तामीर की थी कि एक शख्स ने मुहासरे के ज़माने में मस्जिद हराम के किसी खेमे में आग जलाई। खेमे में आग लगी और चलते चलते काबा तक पहुँच गई, लिहाजा गुलाफ और रुकन यमनी जल गया। ये वाक़या 64 हिजरी का है। दोस्तों, सुल्तान मुराद राबिया इब्न सुल्तान अहमद सलातीन आले उस्मान से था। उसकी तामीर का यह सबब हुआ कि बुध के दिन 8 बजे सुबह 19 शाबान 1039 हिजरी में मक्का और उसके अतराफ में सख्त बारिश हुई तो सैलाब मस्जिद हरम में दर आया और खाना काबा के दरवाजे के कफल से भी 2 मीटर ऊपर हो गया। उसके अगले दिन जुमरात को असर के वक्त काबा की शामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी जो बाब शामी से मुतसिल था जा पड़ा। सिर्फ चौखट के बकदर हिस्सा बाकी रह गया और गरबी दीवार दोनों तरफ से छठे हिस्से के बकदर गिर गई और बैरूनी तरफ से 2 सलस और छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया जो शामी दीवार से मुल्हिक था। दोस्तों, खाना काबा की यही वो 11वीं और आखिरी तामीर थी जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में हुई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि खाना काबा की तारीख पर मबनी ये छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी।